دا نیو ورلڈ آرڈر 1990. یہاں سے ذرا ایک آپ کو بیک گراؤنڈ دیتے ہیں. یہ کتاب شائع ہوئی تھی 1990 میں. ریلف ایپرسن یہ ایک امریکن رائٹر ہیں, انہوں نے دا نیو ورلڈ آرڈر لکھی جب سوویت یونین ختم ہوا اور امریکہ جو ہے وہ تنہا ساری دنیا کا مالک بن گیا. اس وقت کہا یہ گیا کہ کیپٹلزم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے سوشلزم اور کمیونزم کو. کیپٹلزم سلیش ویسٹرن ڈیموکریسی اس سارے اور اس کو ایک آئیڈیل ورلڈ بنا کے پیش کیا گیا. یہ 1990 سے 2025 تک یہ دنیا قائم رہی ہے. پھر اب سے 10 سال پہلے 2014-15 میں BRI آ گیا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کا. وہ اس کے خلاف ظاہر ایک مہم چلی جس کا حصہ سی پیک بھی تھا. اس کے اوپر بہت پابندیاں بھی لگانے کی کوشش کی گئی, اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ معاملہ رکا نہیں. 150 ملکوں میں BRI پھیل گیا. جو 1990 میں ورلڈ آرڈر کریٹ ہوا تھا اس کے ساتھ اکنامک ایڈ, US ایڈ اس کے ساتھ وہ بھی ایک چیز تھی جس نے پھر دنیا بھر کے ملکوں میں جہاں جہاں وہ ایڈ جاتی تھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو شرائط رکھی جاتی تھی اس پیسے کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ آپ اچھی گورننس کریں, آپ وہاں انسانی حقوق کا خیال کریں, وہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں. یعنی کہ وہ پیسے بہت سی کنڈیشنز کے ساتھ آتے, لیکن وہ کنڈیشنز ایسی ہوتی تھیں جس سے وہاں کی گورنمنٹس کو, وہاں کی بیوروکریسی کو اور وہاں کے سوشل سٹرکچرز کو کنٹرول کیا جاتا تھا. یعنی ایک طرح سے امریکہ کی کوشش تھی کہ نہ صرف ایک تو اپنی گرفت مضبوط کرے سیاسی طور پہ ان ممالک پہ جہاں پہ وہ پیسہ دیتا ہے, بلکہ ان ممالک کو اپنے رنگ میں بھی رنگ لے. یعنی ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی ایسی ٹرانسفارم کیا جائے کہ وہ امریکہ کی شکل میں نظر آنے شروع ہو جائے. جیسے کہ عراق کا واقعہ آپ کو یاد ہے 1990 اگین, جو پہلا وہاں پہ امریکی حملہ ہوا تھا, تو بات یہ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ مڈل ایسٹ میں ڈیموکریسی انٹروڈیوس کی جائے گی. اس طرح کے سارے واقعات ہوتے آئے اور پھر ظاہر ہے پچھلے 20 سال میں ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا until the withdrawal of the US forces from افغانستان 3-4 سال پہلے جب وہ وہاں سے فورسز گئیں. لیکن اب کیا ہوا ہے, BRI نے, چائنا نے ایک پیرلل آرڈر متعارف کرایا ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اپنے پینل کے ساتھ چل کے. تو ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عثمان شاہد صاحب اور کچھ دیر بعد جوائن کر گئے ڈاکٹر منور حسین. تھینک یو ویری مچ, یو آر آلریڈی دیئر. تو سر یہ جو قصہ اب چلا ہے, یہ چائنیز ماڈل آف ورلڈ آرڈر اور جو ان کا پیسے دینے کا طریقہ ہے, امداد دینے کا طریقہ ہے, تھرو انفراسٹرکچر, تھرو کوآپریشن, تھرو پارٹنرشپ, اس نے امریکی ماڈل کو چیلنج کیا. اب وہ کمیونزم, وہ سوشلسٹ اسٹرکچر ماڈل جس کو ڈیفیٹ کر کے خوشیاں منائی گئی تھیں, اب اس نے کیپٹلزم, ویسٹرن ڈیموکریسی کے ماڈل کو ڈیفیٹ کیا ہے, اگر میرا یہ کہنا درست ہے. تو ذرا یہ ڈائنامکس بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ چائنا ماڈل اور ویسٹرن ایڈ ماڈل, ان میں کیا فرق ہے, دنیا کیوں اٹریکٹ ہوئی BRI کی طرف, اور اس کے نتیجے میں جو ہوا اب ہمارے سامنے ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے اب کوشش کر رہے ہیں, ہی از فلیکسنگ ہز مسلس, ملٹری مسلس ہیئر اینڈ دیئر, کہ اپنی ڈومیننس کو, ہیجمنی کو برقرار رکھ سکیں. اچھا سر, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ورڈ آرڈر اور ورڈ بیلنس یہ قائم کرنا کتنا مشکل کام ہے. اچھا, آرڈر جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ ہاؤس اینڈ آرڈر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قائم ہو جاتا ہے, جس کے اندر چیزیں بیلنس ہونی چاہیے ایک, اور جو بیلنس ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں, وہ ڈکٹیٹوریل طریقے سے ہوتی ہیں. ڈکٹیٹوریل طریقے سے کیا ہوتی ہیں, مطلب ایک جگہ ڈیموکریسی کہی جاتی ہے لیکن پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیجمنی کی قائم کی جاتی ہے. یعنی مصر کے اندر حکومت کے اندر رجیم چینج ہوتی ہے اور وہاں پہ جنرل سیسی آ جاتے ہیں.
पाकिस्तान की 76 साल से जो है वो हुकूमत तब्दील होती है, लेकिन ग्रांट क्योंकि पहले दिन से हमने लेना शुरू कर दी, फिर गोल्डन 60s भी हमारे थे, और फिर उसके बाद से सारे के सारे प्लान जो मामलात हुए वो जो मिलिट्री को कंट्रोल करते हुए। अच्छा, 3.5 की मिलिट्री एड तो पाकिस्तान के साथ जारी रही, सॉरी इजराइल के साथ, और 1.3 की आपकी खुलकर, यानी बड़े खुलकर, जैसे आपने रीसेंट टाइम में सुना, उन पे पाबंदी नहीं है मिस्र पे, क्योंकि जनरल सीसी के बाद जो है वो मुकम्मल उनका होल्ड आ गया था। अच्छा, दरमियान में कंफ्यूजन होती है, और फिर लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान जो है वो उनकी फंडिंग के ऊपर चलता रहा। अच्छा, अब मैं उस बड़े मॉडल के बजाय एक छोटे मॉडल को डिस्कस करता हूं, यानी यूएस एड को। अच्छा, यूएस एड के पैरेलल मॉडल जो है वो किसी ने आज तक नहीं सुना। चुनाचे मुनासिब है, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने जो है वो ये तारुफ करवाया इस चीज का, यानी सिडका का, CIDCA, यानी चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी। अच्छा, आज तक मैं बड़े वसूख से कहूंगा कि मुमकिन है आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज को भी आइडिया नहीं होगा, और बहुत सारे आपके जो गवर्नमेंट की मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग को, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, इन सारे लोगों को भी पता नहीं होगा, क्योंकि इनका सारा तावन जो है वो यूएसएड के साथ चलता है। यानी यूनिडो ने कोई तारुफ करवा दिया मैकेनिकल लेथ का, कुछ डिजाइनिंग का, नट एंड बोल्ट का, या बाकी चीजों की, यानी मुख्तलिफ किस्म की जो वोकेशनल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह को ग्रांट देने का मामला। इसी तरीके से जो है वो ग्रांट सेहत के शोबे में बहुत ज्यादा दी गई। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो अब सबको ये पता है कि यूएस एड के प्रोजेक्ट पकड़ने हैं। इस बुनियाद पे कितनी एनजीओस बनी, और इस बुनियाद के ऊपर जो एनजीओस बनी उनका ताल्लुक किस तरह बना। वो ताल्लुक जो था वो सिर्फ ये था कि वो अवाम तक नहीं पहुंची, यानी मुख्तलिफ इदारों को पहुंची, और मुख्तलिफ इदारों ने जो है वो हुकूमतों ने उसमें आपस में खा पी लिया। अच्छा, हुकूमतें मजबूत होती गई, और उन्होंने लोगों के जिसके जक लगते थे उसके अंदर से उन्होंने पैसा निकालने को लिया, लेकिन जो मामला जहां तक अवाम तक पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। यानी एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पैसा दिया, यानी ब्राइबरी के तौर पर, लेकिन जिस तरीके से वो अवाम तक पहुंचना चाहिए था वो पब्लिक ऑर्डर में नहीं पहुंचा, यानी पब्लिक डेवलपमेंट के अंदर नहीं पहुंचा, पब्लिक इंस्टीट्यूट तक भी नहीं पहुंचा। अच्छा, क्योंकि जब उसमें कैश की सूरत में जब आएगा तो वो खुद बुर्द हो जाएगा। लेकिन जो आपके सामने मैं तारुफ करवा रहा हूं, और जो आपने करवाया, वो ये है कि यूएस एड के जो पैरेलल सिस्टम है वो चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, यानी CIDCA, सिडका। ये सिडका जो है वो वेस्टर्न एड के जो है वो मुख्तलिफ फंडामेंटल मॉडल को अगर आप देख भी लें, उससे बिल्कुल एक पैरेलल डिजाइन है, और एक बड़ा एक्टिव डिजाइन है, जिसके अंदर हमें अंदाजा होगा कि एक मॉडल जो फ्लॉप हुआ, जो ब्राइबरी की सूरत बना, जिसने हुकूमतों को मजबूत किया और जिसने अवाम को गरीब किया, और तीसरी दुनिया को गरीब समझकर उनको इमदाद पर लगा दिया। लेकिन सिडका का मॉडल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सिडका का मॉडल इंतहाई डिफरेंट है। अच्छा, उसके ऊपर मैं आपके सामने जो अर्ज करता हूं वो ये है कि इमदाद का जो मॉडल है वो प्रोजेक्ट पर मबनी होता है। अच्छा, इसके अंदर इस सादा सा मामला ये है कि इसके अंदर किसी भी सूरत जो है वो प्रोजेक्ट जो है यानी किस तरह से चलता है, यानी चाइनीज को चाइनीज फायदा देते हैं, और उसके पास जो है वो बने बनाए प्रोजेक्ट जो है वो तीसरी दुनिया के अंदर, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो तंजानिया हो, चाहे वो घाना हो, चाहे वो अफ्रीका का कोई मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यानी मिस्र हो, या कहीं का भी मॉडल होगा। अच्छा, जो भी आएगा वो अंडर द बेल्ट एंड रोड, अगर जो 69 कंट्रीज से शुरू हुआ था 179 कंट्रीज पे चला गया, लेकिन उसका जो मामला क्या होगा, वो तरीकाकार ये है कि अक्सर चीनी कंपनियां ठेकेदारों और मजदूरों से मुंसलिक होती हैं। यानी जो पैसा होगा, मिसाल के तौर पर, क्योंकि लंबी गुफ्तगू हो गई, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में किसी एक जगह के ऊपर सोलर पैनल लगने हैं, वो सोलर पैनल वहां की चाइनीज कंपनी लगाएगी, बनाएगी, ठेका उनको मिलेगा, इंडस्ट्री उनको लगेगी, ट्रांजैक्शन वहां होगी, पैसा उनको मिलेगा, इससे एक नई सनत खुलेगी और बहुत सारे करोड़ों अरबों सोलर पैनल्स बनेंगे, और फिर पाकिस्तान की जिस जगह लगने हैं वहां लग जाएंगे। इस तरह पब्लिक को फायदा हुआ और हुकूमत पे एहसान चढ़ा। अच्छा, इस तरीके से
50 ममालिक ऐसे हैं जिस पर मुख्तलिफ लेकिन प्रोजेक्ट्स डॉक्टर साहब इससे फिर वो सारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका तो मजा किरकिरा हो गया ना, वो तो उनके हाथ तो कुछ ना आया। यूएस एड में तो हार्ड कैश आता था, नोट हाथ में आते थे। बिल्कुल ऐसे। अब अंदाजा करें कि उन्होंने सिर्फ इसको ऐसे नहीं किया, इन्होंने बहुत सी जहतों के अंदर काम किया। जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी, ठेकेदार और मजदूर जो हैं वो भी चाइनीज हैं। चाइनीज एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम डेवलप हुआ। चाइनीज जो है वो जो पैसा है वो चाइना के अंदर ही सर्कल होना, और अच्छा वहीं से सर्कल होकर फिर दूसरे मुल्क में जाता है, और दूसरे मुल्क की हुकूमतें में, अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे ताइवान की एग्जाम्पल दे देता हूँ। ताइवान के साथ ये हो रहा है कि 50 ममालिक ने ऑलरेडी कह रखा है कि जिन जिन से यहाँ पे ये इमदाद जा रही है, या कर्जों के तौर पे जा रही है, या ठेकों के तौर पे जा रही है, या बुनियादी ढांचा। अच्छा, आमतौर पे जो डेवलपमेंट में सबसे पहला काम जो करते हैं वो बुनियादी ढांचों में, यानी सड़कें, डैम, पावर प्लांट्स, सड़कें, डैम, पावर प्लांट, सड़कें, डैम, पावर प्लांट्स। चाहे श्रीलंका में आप चले जाएं, आपको वो श्रीलंका की शक्ल उन्होंने बदल कर रख दी थी। सो सबसे पहले वो ये काम करते हैं। अच्छा, मैं मजीद बातें गुफ्तगू उसमें करूंगा कि कसीरुल जहती उसके तरीकेकार क्या है, उसके अंदर ट्रांजैक्शनल मामला क्या है, फिर उसके अंदर जो फंड्स और लोन्स देते हैं उसका तरीकाकार क्या है, और बैंक जो उनके पैसे। अच्छा, एक और बात, वहां आईएमएफ नहीं है, वहां का बैंक कर्ज देता है, और बैंक से कर्ज का रोल ओवर होता है और इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, चाहे वो 4 पे मिले, 5 में मिले, 2 पे मिले, 1 पे मिले, कर्ज इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अगर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुल्कों में है, जो जिसने चाइना से कर्ज लिया। अच्छा, अब मैं जो बता रहा हूं कि इससे क्या हुआ, जो ये सिडका का मॉडल है, सिडका के मॉडल के अंदर पाकिस्तान के जितनी यहाँ एनजीओज हैं, इस वक्त बहुत से और भी लोग पीछे पड़े हुए हैं कि वहां से फंड्स मिल जाए, वहां से फंड्स नहीं मिल रहे और ना वो काम कर रहे हैं। अब वो बिजनेस राउट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट एड का पैसा नहीं मिल रहा। सो ये उन्होंने वहां पे नाटका बंद कर दिया, चुनाचे ये कामयाब मॉडल हो गया, और इससे जो है वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो अगर चाइना ये कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, हमारी कोऑर्डिनेशन है, और हम आपको जो है खुद भी डेवलप हो रहे हैं, आपको डेवलप करना चाहते हैं, आप भी हमसे ट्रेड करें, हम भी आपसे ट्रेड करते हैं, तो ये कसीरुल जहती जो है ट्रेड बैलेंस और वर्ड बैलेंस है, इसको वर्ड ऑर्डर कहना मुनासिब नहीं होगा, ये वर्ड बैलेंस है। मजीद मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ये यूएस एड का मॉडल जो है वो हुकूमतों को रिजीम चेंज करवाता है, लेकिन चाइना का सिडका मॉडल अवाम, वहां की हर मुल्क की अवाम को मजबूत करता है। चाइना यानी गवर्नमेंट के रिजीम चेंज में वो मुंसलिक या उनकी इंटरवेंशन नहीं होती।